Hello everyone. So I welcome you all in this another video. So in this video, we are going to talk about the five major themes or five major news uh, related to Indian economy in the 2025. पांच प्रमुख न्यूज पे चर्चा करेंगे. So let us begin. So पांच प्रमुख टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? So these are the list of the topic. Depreciation of rupee. It has been in the news for the last 2-3 months. Low inflation rate which India is experiencing. It has been a cause of worry. It can cause of a worry. Next, RBI's revised liquidity management framework. So ये भी एक important news है which we'll see. GDP related issues काफी news में रहे हैं. Base revision related issues. All those issues we'll try to see. And then GST 2.0 reforms, which the government announced with a lot of no enthusiasm in September. So let's begin the video. So first thing is depreciation of rupee. What we have observed in the last 2-3 months that rupee has ultimately breached the 91 rupees level against the dollar, and it has been the weakest Asian currency in 2025. All right, so last 2-3 months से आप देखेंगे तो there has been a continuous slide जो हमने observe किया है. All right, and ultimately 91 का जो मार्क्स था रुपी का उसने भी ब्रीच कर दिया है. सो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी विज यूपीएससी एग्जामिनेशन. सम थिंग्स जो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो कॉजेज हो रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन, रोल ऑफ आरबीआई इन मेंटेनिंग द रुपी स्टेबिलिटी. क्या आरबीआई का रोल रहता है? हाउ डज आरबीआई मेंटेन द रुपी स्टेबिलिटी सो दैट सडन शॉक्स ना रहे. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस डेप्रिसिएशन का. किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा होगा, किसी पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा होगा. सो हु आर all the winners or loser in this rupee depreciation saga. All right, and then some of the way forwards ki how we can tackle this depreciation of rupee over a longer period of time. All right, so causes में क्या क्या causes है? Some of the causes, see, one of the crucial thing which you have to understand is जब हम depreciation of rupee की बात कर रहे हैं, for example $1 is equal to rupees 80 is now $1 is equal to rupees 90. So what has become? Dollar is becoming costly. All right, dollar is becoming costly with rupee, and it is mainly due to scarcity of dollars. Scarcity of dollars in the Indian economy. All right, there has been a continuous outflow of dollars. अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है, and that is why the डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो गई. All right, so that is why डॉलर महंगा हो गया है रुपए के टर्म्स में. तो that is what the idea. All right, तो क्या कॉज है अभी रुपी डेप्रिसिएशन का? कि मेनली बिकॉज ऑफ डॉलर आउटफ्लो. ऑलराइट, तो पहला है कि फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो हो रहा है. ऑलराइट, एफआईआईज आर selling their stocks, they are taking their dollars and they are leaving the India. That has been the continuous themes अगर आप लास्ट 2-3 महीने का देखेंगे. Another crucial aspect is that trade deficit. All right, trade deficit is export minus imports. So हमारे imports बहुत ज्यादा हो गए हैं. For example, mainly because of why the imports have risen, mainly because of the prices of gold, silver as well as fertilizers. All right, जिनको हम ज्यादा मात्रा में import करते हैं. So their prices has risen. So basically import has risen. अगर import ज्यादा हो जाएगा तो again the dollar outgo will be more. All right, ठीक है, तो that is there. Another crucial aspect जो यहाँ पे है कि there has been a
डिले एंड अनसर्टेनिटी ओवर इंडियाज यूएस ट्रेड डील। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टर्स आर नॉट पुटिंग देयर मनी इन द इंडिया। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट द आइडिया। ऑल्सो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की थोड़ी सी बातें हो रही हैं। सो ऑल दोज थिंग्स हैव मेड नो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। एक और इम्पॉर्टेंट महत्व है जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो एफडीआईज का इनफ्लो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स द सेफ इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, एंड दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू डॉलर एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर स्कार्स हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, एंड दैट इज वाई रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है विज़अविस इंडियन रुपी। तो कॉजेस हो गया। आरबीआई का रोल थोड़ा इस बार डिफरेंट रहा है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। सो इस बार एफबीआई हैज बीन लेस एग्रेसिव इन स्टेमिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। कोई इतना ज्यादा उसको एक पॉइंट पे रोकने के लिए आरबीआई नहीं लगा हुआ। दैट इज व्हाट द आइडिया। तो लेस एग्रेसिव इंटरवेंशन स्ट्रेटजी रही है इस बार आरबीआई की एज कंपेयर टू पास्ट। ओनली आरबीआई इज इंटरवेनिंग कब, जब बहुत कर्व, आरबीआई नीड टू कर्व द एक्सेसिव वोलेटिलिटी, कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस ना हो जाए। only then RBI is intervening, and RBI is not intervening with the motive that I have to defend rupee up to a particular level. Alright? तो जैसे रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर आउटगो हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। नाउ इफ आरबीआई वांट्स टू स्टेप इन, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई हैज टू रिलीज dollars in the Indian economy so that there is sufficient availability of dollars, scarcity of dollars ना रहे, तो रुपी की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। दैट इज व्हाट की, लेट अस से फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट 91 है, तो 90 हो सकता है, 89 हो सकता है, 88 हो सकता है। दैट इज व्हाई आरबीआई का इंटरवेंशन हो रहा है। तो बट इस बार दैट इज व्हाट the RBI governor has also said, that we are not defending any particular level of rupee. We are just trying to curb the excessive volatility. All right. So that is one of the thing which you can talk about जब RBI का रोल रहा है इस बार। Like rupee depreciation impact, this is very very important when you're talking about the UPSC prelims also, कि कहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि when there is depreciation of rupee, so those who are going to no those who have dollars and those who are going to sell dollars to get rupees, उनको फायदा होगा हमेशा। All right. And those who want to get dollars for anything, those who want to get dollars, जो डॉलर का डिमांड करेंगे, those who are demanding the dollars, all right, उनके लिए वो हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज अब डॉलर महंगा हो गया है। अर्लियर आपको $1 80 में मिल जा रहा था, बट नाउ टू गेट द सेम $1 यू हैव टू स्पेंड ₹90। सो जो भी डिमांड करेंगे डॉलर के, दोज पीपल हु आर डिमांडिंग डॉलर्स, ऑलराइट, दोज हु वांट टू परचेज डॉलर्स, डिमांडिंग डॉलर्स, ऑलराइट, दे विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड दोज हु आर सप्लाइंग डॉलर्स, दोज हु हैव डॉलर्स सप्लाइंग डॉलर्स, ऑलराइट, दे विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिकॉज अगर वो सप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द ₹90 नाउ, विच दे वर अर्लियर गेटिंग ₹80। तो ये एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज, ऑलराइट, तो दैट इज अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट। रेमिटेंसेस बढ़ जाएगा इंडिया के कंटेक्स्ट में, बिकॉज लेट अस से अर्लियर $1 somebody was sending, तो it was giving them ₹80, now that will be giving them ₹90, so they may send the additional dollars, so remittances may increase। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो इंक्रीज, राइट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ टू इंटर रिलेटेड फैक्टर्स।
पहला क्या होता है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज इंक्रीजिंग, नो देर इज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट मोर. Another thing is that imports are becoming costlier. All right, imports are becoming costlier. So that is why इनका जो combination होता है कि there is more opportunity of no exports, and there is a no imports are becoming costlier. So that is why it leads to increase in domestic investment. ठीक है, so imports will become costlier, forex reserve may decline, all right, when the RBI is intervening in the you know to stem the sliding of rupee. So it may take dollars from the forex reserves and it may sell it in the Indian economy. So forex reserves may decline, physical deficit of government may increase, all right, physical deficit can increase, inflation may increase, especially because of increase in prices of imported material, sometimes called as imported inflation. Imported inflation, so that is also there. FDI and FII may not come, all right, it may the FDI and FII may not be incoming, ज्यादा उसका incoming ना रह जाए, all right, more and more outgoing हो जाए, all right, that is what the idea. More outflow of FDI can be there, or less incoming of FDI or FIIs. Sovereign credit ratings. So, seeing the economy, inflation is increasing, physical deficit may rise, forex reserves may decline, current account deficit may rise, on an adverse balance of payment भी हो सकता है. तो sovereign ratings by the sovereign credit rating agencies, so they may give adverse rating, they may give adverse rating. All right, that is what the idea. So इसको देख के भी FDI and FII में decrease. So that is what the idea. Then servicing foreign denominated debt will become costlier. All right, it will increase. All right, so servicing foreign denominated debt, जो भी आपने foreign denominated में लोन्स वगैरह लिया होगा जिसकी आप डॉलर में EMI भर रहे होंगे, तो that will become costlier. Then similarly, there will be more volatility in stock market. So these are, you can say, some of the important impact of depreciation of rupee. So ये बहुत important है from the prelims perspective. All right. So rupee depreciation, different sectors में क्या impact आएगा? तो again the export oriented sectors जहां से export हो रहा है, that will have a positive impact. And those sectors who are mainly dependent on imports, because imports have become costlier, so उनका वहां पे negative impact आएगा. So for example, IT services, pharmaceuticals, textiles, gems and jewelry, agriculture, those who are having a more and more exports oriented, तो वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. निगेटिव इम्पैक्ट्स कहां पे है? ऑयल एंड गैस, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैज इंक्रीज, सो इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर. एविएशन में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो फ्यूल होता है, दैट इज मोस्टली हैविंग अ 50% ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, तो वहां पे भी दिक्कत आ जाती है. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हाई एंड कार्स बहुत महंगी हो जाएंगी. Alright, so that is what the idea. Foreign education, if you want to go to foreign countries, let us say US, and study there, then you have to purchase dollars, and dollar has become costlier. So आपकी foreign education costlier बन जाएगी. Indians moving, going to US as a for tourism, alright, so that will become more costlier. That will become more costlier अगर Indians are going to USA, all right, तो that will become more costlier. तो ये सारी चीजें रहेंगी when we are talking about it. One of the positives can be कि more and more foreign people can come and visit India, because that will become cheaper. All right, that will become cheaper. So domestic tourism, all right, may increase. All right, that is what the idea, because they will be having dollars and they will be spending dollars in India. So that may give a boost. ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी से रिलेटेड चीजें हो गई. वे फॉरवर्ड में
बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बट बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी गेन, डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड प्रोडक्ट, साइनिंग डिफरेंट डिफरेंट FTAs जो भारत सरकार कर रही है. Alright, and then we have to promote more and more FDIs rather than FPIs because these are hot money. Alright, बहुत जल्दी वो बाहर चले जाते हैं. तो that is what the idea. And then अपना फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रखना है. ऑलराइट, सो इन्फ्लेशन मॉडरेट रखना है, फॉरेक्स बफर थोड़े से ज्यादा रखना है. ऑलराइट, डेट टू जीडीपी रेशियो मॉडरेट एंड कंट्रोलेबल सस्टेनेबल लिमिट में रखना है. ऑल दोस थिंग्स आर देयर जो हमें करना है इन ऑर्डर टू फाइट दिस डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी. ऑलराइट, तो ये सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. Another important news has been that inflation for the last few months has been very low. WPI inflation तो negative चल रहा है and CPI inflation was also recorded as lowest 0.25%. All right, 0.25%. It is the lowest year-on-year inflation of the current CPI series. ये है. All right, so इतना 0.25% of CPI was recorded. So inflation has been very low. That is why sometimes we are calling at this moment of Indian economy phase as Goldilocks phase. All right, तो sustained economic growth है, low level of inflation and there is certain room for interest rate cut. तो इन सारी चीजों को मिला के we are saying that Goldilocks phase चल रहा है. So low inflation, it has been a very low inflation. So इनसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत फायदा ही हो जा रहा है. So there can be a lot of worry because of this low inflation. तो कुछ कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पे स्टैटिक क्वेश्चंस आर आल्सो इन लार्जर चंक. बेसिकली दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द करंट हैपनिंग. फॉर एग्जांपल जैसे लो इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन एज ए टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट और वहां पे स्टैटिक पार्ट से आपको क्वेश्चंस पूछ देंगे. तो आपका स्टैटिक पोर्शन अबाउट इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से किया होना चाहिए. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ऑल द related concept with the inflation, deflation, disinflation, reflation, etc. जो भी keywords associated with inflation है. For example, comment करके बताइए what is the meaning of inflation tax, इसका क्या मतलब होता है. Alright, the different types of inflation, alright, cost push and demand pull. Then the measurement of inflation, how it happens in India. Alright, WPI, CPI and the different measurement, GDP, deflator, etc. Housing price index. Alright, so different types of CPI. Alright, so base years of that, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है इन डॉक्यूमेंट्स को, वो सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पता होनी चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन किस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया. तो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए. व्हाई द रिसेंट डिक्लाइन इन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई तो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है एंड सीपीआई हैज बीन अ हिस्टोरिक लो. ऑलराइट, तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. ऑलराइट, एंड देन फाइनली कि लो इन्फ्लेशन है तो क्यों एज ए कॉज ऑफ कंसर्न देखते हैं, क्या वरी देखते हैं कि हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि इन्फ्लेशन हमेशा कम ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द इन्फ्लेशन टारगेट का जो हमारा बैंड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, दैट इज लोअर बैंड इज 2% एंड हायर बैंड इज 6%. हम बोलते हैं ना 4 ± 2%. ऑलराइट, 4 ± 2%. जस्ट टेल मी इन द कमेंट व्हाट इज दिस 4 ± 2%. आइदर इट इज सीपीआई और डब्ल्यूपीआई. क्या है ये, कौन सा इन्फ्लेशन ट्रैक करते हैं जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं. तो दैट इज व्हाट कि द व्हेन वी आर ट्राइंग टू टारगेट इन्फ्लेशन विद इन दिस बैंड, तो इट इज स्टिल नॉट देयर इन दिस बैंड, इट इज वेरी वेरी लो. ऑलराइट, 0.5%. ऑलराइट, दैट इज व्हाट द आइडिया. ठीक है, तो एक चीज और बताइए,
कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अगर इस इन्फ्लेशन को इस बैंड में नहीं रख पाती है तो फेल्योर हो जाता है। तो कब उसका फेल्योर होता है, कितने समय तक अगर इन्फ्लेशन इसमें नहीं है तो एमपीसी का फेल्योर माना जाता है? इफ यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो ये सारी चीजें, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जो हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इन सब सारी चीजों पे। राइट। क्यों लो इन्फ्लेशन रहा है? मेनली बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन फूड प्राइसेस। तो वेजिटेबल्स के प्राइसेस, फ्रूट के प्राइसेस, एग के प्राइसेस, दे हैव बीन अ हिस्टोरिक लो। राइट, तो उसमें प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। दैट इज व्हाट द आइडिया। अनदर इज जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन है, उसके कारण भी नो इम्पैक्ट आया है, प्राइसेस कम हो गई हैं। Another important factor responsible for low CPI is that favorable base effect. Earlier बहुत ज्यादा था, अब उसका base effect आ रहा है कि थोड़ा सा कम होते जा रहा है। ठीक है, तो that is what the idea. Uh, why ultra low inflation can be dangerous? So that is what the idea कि for steady economic growth we require a certain minimum level of inflation. That is why जब inflation target की भी बात आती है तो इस बैंड 4 ± 2% में हम इन्फ्लेशन चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन जीरो हो जाए या वेरी लेस हो जाए। तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि जब इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा, प्राइसेस के घटने लगेंगी, तो एज ए कंज्यूमर व्हाट यू विल थिंक दैट आज पोस्टपोन करते हैं, अभी चीजें नहीं खरीदते हैं, मे बी टुमारो प्राइसेस और कम हो जाए। सो व्हाट इट विल लीड टू, पीपल विल रिड्यूस देयर कंजम्पशन बिकॉज वो अपने नो परचेजेस को पोस्टपोन करने लगेंगे, बिकॉज दे बिलीव दैट प्राइसेस विल no fall further. So it will lead to decline in consumption. All right, it will lead to decline in consumption. All right, if there is decline in consumptions, तो क्या सिग्नल मिलेगा इसको प्राइवेट फर्म्स को? All right, because there is less demand, so they will reduce their production. All right, they will reduce their production because अभी उतना आउटपुट की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट फर्म क्या होगा, इंडिविजुअल्स एंड अदर थिंग्स क्या कर रहे हैं, अपना कंजम्पशन डिक्लाइन कर रहे हैं। दिस इज गिविंग सिग्नल्स टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फर्म्स की हमें उतनी आउटपुट की जरूरत नहीं है, देयर इज लेस डिमांड, सो दे आर रिड्यूसिंग देयर प्रोडक्शन। एक बार जब प्रोडक्शन कम कर लेंगे तो व्हाट दे विल डू, उनको इतनी वर्कफोर्स की जरूरत नहीं रहेगी, तो इट मे लीड टू ले ऑफ द पीपल, लेस एंड लेस जॉब्स। ऑलराइट, ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर मे नॉट गो फॉर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, सो इन सब सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आएगा कि जीडीपी में डिक्लाइन। दैट इज व्हाट द आइडिया, जीडीपी में डिक्लाइन। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज कि जो लो इन्फ्लेशन वैल्यू रहती है, इट इंक्रीजेस द रियल वैल्यू ऑफ डेट और इंटरेस्ट रेट, तो वो भी एक बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच मे अल्टीमेटली इम्पैक्ट द जीडीपी। राइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। कई बार वो लो इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन वाले जोन में चले जाते हैं, विच इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। सो ये सारी बातें इस टॉपिक में आपको ध्यान रखनी है। लेट अस सी द another important thing, RBI's revised liquidity management framework. So RBI has released a revised liquidity management framework. All right, so that was in the news. तो एक बार देख लेते हैं। इसमें भी जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट की आरबीआई कैसे करता है, सो यू हैव टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई लिक्विडिटी कैसे मैनेज करता है इन द इकोनॉमी, व्हाट डिफरेंट टूल्स आरबीआई यूज, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स कैसे यूज करता है व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, व्हेन देयर इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, देन इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट और डिक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, ऑल दोज थिंग्स, एंड द रिवाइज्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है because a lot of questions are being asked in the UPSC prelims based on these liquidity management. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑलराइट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो, ऑलराइट, statutory liquidity ratio, all those things are very very important for the prelims perspective. All right, open market operations, swap,
फॉरेक्स स्वैप जो कर रहा है, दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए। क्या क्या हुआ है जब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रिवाइज्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सो कुछ चीजें इसमें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट कीप देयर इन द माइंड। द ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट, जिसको हम WACR भी बोलते हैं, इट इज द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। ये पहले भी था और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इट इज द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक ये इंपॉर्टेंट है। देन द एग्जिस्टिंग सिमेट्रिक कॉरिडोर, क्या हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं? ऑलराइट, सो रेपो रेट, जिनको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, सो रेपो रेट इज देयर इन द मिडल। फ्लोर पे क्या रहता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट अब हट गया है। एंड ऊपर क्या रहता है? MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट कॉन्स्टिट्यूट द सीलिंग ऑफ द कॉरिडोर, marginal standing facility. All right, so it is plus 0.25 and it is minus 0.25. All right, that is what the idea. तो ये total corridor का width कितना है? 0.5%. All right, so that is what the idea. So ये ध्यान रखेंगे। Then Reserve Bank will endeavor to align the WACR to the policy repo rate. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है उसमें क्या करना चाहता है, जो डे टू डे WACR है, वेटेड एवरेज कॉल रेट है, दैट शुड बी अलाइनिंग विद द पॉलिसी रेपो रेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये RBI करता है। राइट, देन द ये भी इंपॉर्टेंट है कि 14-day variable repo rate and 14-day variable rate reverse repo operation will be discontinued as the main operation for managing the short term or ट्रांजिएंट लिक्विडिटी। तो इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी जगह पे क्या लाया गया है? 7-day वेरिएबल रेट रेपो एंड 7-day वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, तो ये आ गया है। तो ये 7-day इंपॉर्टेंट है। तो अब जो शॉर्ट टर्म और ट्रांजिएंट लिक्विडिटी मैनेज कर रहा है उसका मेन टूल क्या है? 7-day वेरिएबल रेट रेपो एंड 7-day वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्लियर इट वाज 14-day। Alright, so that is what the idea. So this is there. And then to reduce uncertainty in the market about the tenure, quantum and timing of the repo and reverse repo operations, क्या किया है? RBI will provide sufficient advance notice to the market participant at least by 1 day. तो जब भी ये करने जाएगा तो एटलीस्ट 1 day एडवांस नोटिस आपको बता देगा। ऑलराइट, दैट इज व्हाट द आइडिया। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट कि जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे टू मैनेज द ड्यूरेबल लिक्विडिटी, टू मैनेज द ड्यूरेबल लिक्विडिटी, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन है, फॉरेक्स स्वैप ऑप्शंस हैं, ये विल कंटिन्यू एज ए पार्ट ऑफ रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो दे विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट framework tool to manage the durable liquidity. Then the current requirement of maintaining a minimum of 90% of the prescribed CRR on a daily basis will continue. तो ये भी एक important है. And then standalone primary dealers will have access to SDF, overnight reverse repo operation and all repo operation irrespective of their tenures. तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए regarding the revised liquidity management framework. Like, so this table is also very very important. इसमें काफी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज द शॉर्ट टर्म और ट्रांजिएंट लिक्विडिटी, उसमें क्या क्या यूज होता है? वेरिएबल रेट रेपो एंड वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो विच इज ऑफ द ड्यूरेशन ओवरनाइट टू a fortnight, वो है। Then standing deposit facility that is being used for to manage the short term or transient liquidity, marginal standing facility and forex swap, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। तो forex swap को जो होता है वो यूज करते हैं। Alright, so that is there. A standing deposit facility पे no restriction on amount है। Marginal standing facility is up to 2% ऑफ देयर NDTL। वो सारी चीजें आप इसमें
देख लेंगे जो जो बेसिक्स हैं। ऑलराइट, देन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज ड्यूरेबल लिक्विडिटी, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रेपो और लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो बियॉन्ड फोर्टनाइट से ज्यादा। ऑलराइट, फॉरेक्स स्वैप ऑप्शंस एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। तो ये भी ध्यान रखिए कि फॉरेक्स स्वैप, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रिपो, दीज आर ऑल डिस्क्रिशनरी, ऑल द थिंग्स बिलोंग टू द आरबीआई की करना है कि नहीं करना, ये सारा डिस्क्रिशनरी है आरबीआई की तरफ से। ऑलराइट, बट जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये डेली ये चीजें अवेलेबल है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो ये भी एक चीज ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो आप ध्यान रखो। Another thing is has been a lot of news, other things related with GDP, gross domestic products. पहला तो है कि Ministry of Statistics and Program Implementation is going to come up with a new base year for GDP. All right. So new base year will be 2022-23. This will be the न्यू बेस ईयर। अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है? 11-12। ऑलराइट, सो द बेस ईयर इज गोइंग टू बी चेंज्ड नेक्स्ट ईयर फेब में व्हेन द मॉस्पी विल अनाउंस द रिवाइज थिंग्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो बेस ईयर से रिलेटेड बातें हो रही थी। देन आईएमएफ ने भी बोला कि जो उनका नेशनल अकाउंट्स बनाने की चीजें यूज कर रहे हैं, नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स जो सारी चीजें हैं, उसको उन्होंने बहुत ही लो ग्रेड दिया था, दैट इज सी ग्रेड दिया था। ऑलराइट, सेकंड लोएस्ट ग्रेड दिया था कि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज जो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का Q2 का जीडीपी ग्रोथ है, दैट इज 8.2%। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, बट जो इट इज नॉट मैचिंग विद द मंथली डेटा ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। ऑलराइट, जैसे आईआईपी का डेटा आया मंथली डाटा, तो बोलेंगे जीडीपी बढ़ रहा है बट आईआईपी उतना नहीं बढ़ रहा है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक एयर ट्रेवल की जो बात हो रही है, तो बोलेंगे जीडीपी बढ़ रहा है बट डोमेस्टिक एयर ट्रेवल इज नॉट इंक्रीजिंग। सो दैट इज व्हाट द आइडिया कि हमारा जीडीपी तो कई बार दिखता है कि बढ़ रहा है, बट समटाइम्स देर इज डिसोनेंस बिटवीन द मंथली हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, सो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट्स पता होने चाहिए? बेसिक्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ऑलराइट, कि जीडीपी में क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं इंक्लूड होता है। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल जैसे कमेंट में बताइए कि गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट, वेदर इट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी और नॉट। तो ऐसे बेसिक चीजें आपसे पूछता है कई बार, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स वेदर दिस इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी और नॉट। सो बेसिक्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, वो सारी चीजें। राइट, डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं इंक्लूड होता है। 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन रिवाइज किए थे। राइट, तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड देन सम कंसर्न्स जो काफी दिनों से न्यूज में रहती हैं कि there has been a dissonance in GDP and monthly high frequency data and discrepancy in GDP. Alright, तो GDP तीन तरीके से करते हैं हम। Alright, that is why sometimes it is seen that it is not, the value is not matching from the three different things which we are using. Alright, three different ways in which we are calculating the GDP उससे match नहीं कर रहा है, and then we say that कि हाँ discrepancy आ गई है। Alright, so these are the things जो आपको थोड़ी सी knowledge में होनी चाहिए। Then why IMF have given C grade to India's national accounts? तो पहला था कि जो बेस ईयर है वो आउटडेटेड है, तो बेस ईयर से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें। ऑलराइट, तो बेस ईयर हैज टू बी क्लोज टू द करंट ईयर।
ऑलराइट, जो भी करंट ईयर चल रहा है, बेस ईयर हैज टू बी क्लोज टू द करंट ईयर. वाई? बिकॉज जैसे बहुत पुराना बेस ईयर हो जाएगा, देन इट मे नॉट बी एबल टू पिक्चर द स्ट्रक्चरल चेंजेस विच हैज हैपेंड इन द इकोनॉमी. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मशीन लर्निंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो ये सारी चीजें 2011-12 में नहीं थी, तो वो कोई वेटेज ही नहीं है. ऑलराइट, तो उसमें कोई इंक्लूड ही नहीं हो पा रहा. तो दैट इज व्हाट द आइडिया. तो बेस ईयर हैज टू बी वेरी रिसेंट एंड इट हैज टू बी वेरी क्लोज टू द करेंट ईयर. तो एक चीज ये है. देन यूज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स एज डेटा सोर्सेस फॉर जीडीपी डिफ्लेटर्स. ऑलराइट, ड्यू टू बिकॉज इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी नहीं रिलीज होता है. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया. तो एक ये है कि अभी भी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज कर रहे हैं एज ए डिफ्लेटर. वी आर नॉट publishing the producer price index. And then excessive use of single deflation rather than duffel deflation. तो ये सारी चीजें हो रही हैं which is not getting the accurate pictures. Then at times sizable discrepancies, जो हमने बोला साइजेबल डिस्क्रिपेंसीज, जैसे हम बोलते हैं ना वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सो जब हम डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं तो व्हाट वी है, जीडीपी कैलकुलेटेड फ्रॉम नो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड माइनस जीडीपी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड. तो इससे जो डिफरेंस आता है दैट इज व्हाट इज कॉलिंग एज डिस्क्रिपेंसीज. ऑलराइट, between production and expenditure approaches that may indicate the need to enhance the coverage of expenditure approach data and the informal sector. तो ये discrepancy भी बहुत ज्यादा कई बार huge discrepancy आ जाती है. Alright, and then lack of seasonally adjusted data and room for improvement of other statistical techniques. So that is why one of the crucial thing which the MOSPI is doing, that it is changing the base year of a lot of things. ऑलराइट, तो इन्फ्लेशन का चेंज कर रहा है, जीडीपी का चेंज कर रहा है, वो सारी चीजें वो कर रहा है. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेशली विथ रिगार्ड टू प्रीलिम्स. ऑलराइट, देन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स. नो, जब सितंबर में ये अनाउंस हुए थे, ऑलराइट, तो एक लॉट ऑफ थिंग्स था कि इट विल बूस्ट द कंजम्पशन. तो देख लेते हैं कि जीएसटी 2.0 में क्या क्या चीजें थी. तो इसमें भी जीएसटी से रिलेटेड आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि व्हाट इज जीएसटी, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें सारी चीजें हैं, क्या क्या है, एंड देन क्या रिफॉर्म्स लाए थे जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स. तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. जीएसटी नो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था. और इट सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है. डिफरेंट टाइप्स क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. तो ये सारी चीजें कैसे वर्क होता है जीएसटी में, कैसी चीजें चलती हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए, है ना. बेसिक्स जो है जीएसटी से रिलेटेड उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. देन जब 2.0 क्या रिफॉर्म्स लाया था, इट वाज बेस्ड ऑन द 3 पिलर अप्रोच कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे थे, रेट रेशनलाइजेशन कर रहे थे, एंड फोकस वाज ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस. इन तीनों के तहत सोच के वी हैव कम अप विथ जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स. तो 7 पिलर्स ऑफ नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स, दीज वर द सम ऑफ द 7 पिलर्स थे. उसी के बेसिस पे हमें रिफॉर्म्स कर दिया गया. लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया गया. अर्लियर 5%, 12%, 18% एंड 28% थे. नाउ वी हैव डुअल रेट, 2-tier सिस्टम. 5% जो मेरिट रेस्ट है मोस्टली फॉर द essential and common use items, and the 18% which we are calling as standard rate for most of the other goods and services. Alright, तो another is 40% का जो स्पेशल रेट है. ऑलराइट, जो अर्लियर हम 28% प्लस सेस करते थे, अब वो 40% कर दिए हैं. मोस्टली इट इज एप्लीकेबल ऑन सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स. ऑलराइट, तो मीडियन टैक्स रेट हैव इफेक्टिवली मूव्ड फ्रॉम 12% टू 5%, ये हो गया है. ऑलराइट, तो दैट इज देयर.
जीएसटी 2.0 में कई बार अगर प्रीलिम्स में पूछना होगा तो दे माइट आस्क दैट नो समटाइम्स थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहाँ पे सस्ती हुई चीजें, कहाँ महंगी हुई चीजें, कई बार ये है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीएसटी रेट में ऑल्सो चेंज, बट अभी तो ये है कि सम ऑफ द थिंग्स आइटम्स हैव जीएसटी कट हो गया है एंड सम ऑन सम इट हैज इंक्रीज, तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी related with that. All right. And then it has also talked about the dispute resolution. No, GST, Goods and Services Tax Appellate Tribunal, is set to be operational for appeals before the end of September 20, जिसको operational भी कर दिया गया. All right. So that is what the idea. Simplified GST rational scheme for small and low risk business. तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के government has come out with GST 2.0 reforms. All right. So these are the things. All right. So these were the 5 most, you can say, key highlights or key takeaways from the economy news of 2025. So I will see you in the next video. Thank you.